Hello everybody, I hope you all are doing great. I welcome you all to my channel Law Classes by Shivani. So student, in this video I will be covering chapter 5 of the MP Accommodation Control Act 1961. Previous videos में मैंने chapter 1 and 2 cover किया है. Why I have skipped बीच वाले chapters, इसके बाद जो videos आएगी वहाँ पे मैं ज़रूर cover करूँगी. मैं चैप्टर 5 पहले इसलिए डील कर रही हूँ बिकॉज चैप्टर 5 इज़ रिगार्डिंग द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़, उनके अपॉइंटमेंट, पावर, फंक्शंस एंड अपील. सो आई जस्ट थॉट कि पहले से जान लेते हैं. देयर आफ्टर विल कवर चैप्टर थर्ड ए एंड फोर्थ. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. Section 28 Appointment of the Rent Controlling Authority. Clause 1. The collector shall, with the previous approval of the state government, appoint an officer not below the rank of the deputy collector to be the rent controlling authority for the area within its jurisdiction to which this act applies. कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कौन अपॉइंट करता है? कलेक्टर अपॉइंट करता है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफिसर कौन हो सकता है? ऐसा ऑफिसर हु इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डेप्यूटी कलेक्टर, उसे अपॉइंट किया जाएगा रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर द एरिया विद इन द जुरिस्डिक्शन. ठीक है, जिस एरिया में ये एक्ट अप्लाई करा जाता है वहाँ पे रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपॉइंट करी जाएगी. ठीक है, सो आपका क्लॉज 1 में बताया कि कौन अपॉइंट करेगा एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द RCA. Clause 2. The collector may, with the previous approval of the state government, appoint from amongst officers not below the rank of the deputy collector one or more rent controlling authority as he deems fit टू असिस्ट द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी. देखिए, क्लॉज 1 में जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपॉइंट किया है जिसे, उसे असिस्ट करने के लिए अगर कलेक्टर चाहे, अगर ज़रूरत है, तब स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल के साथ एक या एक से ज़्यादा रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ और भी अपॉइंट कर सकता है टू असिस्ट द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी द पर्सन हु इज़ बीन अपॉइंटेड अंडर क्लॉज 1. ठीक है, तो क्लॉज 1 में सिंगल RC अपॉइंट हो रहा है. सेकंड क्लॉज में उसको असिस्ट करने के लिए एक से ज़्यादा जो है RC अपॉइंट करे जा सकते हैं अगर कलेक्टर को लगता है ज़रूरत है तब. 29 Powers of the RCA. The RCA shall have the same power as vested in the civil code under the CPC in any proceeding before it in the respect of the following matters, namely summoning and enforcing the examining him on oath, B. requiring the discovery and the production of the documents, issuing the commission for or any other matter, and in proceedings before the RCA shall be deemed to be the judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228 of the IPC, and the RCA shall be deemed to be a civil court within the meaning of section 480 and 482 of the CRPC. तो पहला पॉइंट यहाँ पे यही है कि RCA के पास सेम पावर है जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है CPC में इन दी फॉलोइंग मैटर्स. कौन से मैटर्स हैं? समन इशू करने का, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, और वेयर डिस्कवरी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड, कमीशन इशू करना फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस, या फिर कोई और अदर मैटर. RCA के सामने जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी यहाँ पे डीम टू बी, ये मान लिया जाएगा वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं अंडर सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ IPC. 193 of IPC, punishment for the false evidence giving or fabricating at any stage of the judicial proceeding. 228 में क्या होता है? intentional insult होता है या interruption to the public servant in any stage of the judicial proceeding. उसके बाद है आपका कि जो RC है वो सिविल कोर्ट होगा अंडर द मीनिंग ऑफ 480 एंड 482 ऑफ द CRPC. Clause 2. For the purpose of holding any inquiry or discharging any duty under this act, the RCA may A. After giving not less than 24 hours notice in writing, enter and inspect any accommodation at any time between sunrise and sunset. By written order, require any person to produce for his inspection all such accounts, books or other documents which are relevant for the inquiry at that point of time. सो क्लॉज 2 में ये कहना चाह रहे हैं अगर RCA को इंस्पेक्शन करना है किसी अकोमोडेशन का तो डायरेक्टली ऐसे जाके वो इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं. 24 आवर्स पहले नोटिस भेजना पड़ेगा राइटिंग में, और इंस्पेक्शन का टाइम होगा सनराइज़ और सनसेट के बीच में. RCA चाहे तो रिटन ऑर्डर भी भेज सकता है अगर उसे कोई अकाउंट है, बुक है या कोई डॉक्यूमेंट है जो उस इंक्वायरी से रिलेटेड रेलिवेंट है उसके इंस्पेक्शन के लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 30. Section 30. Procedure to be followed by the RCA. Clause 1. No order which prejudicially affects any person shall be made by the RCA under this act without giving him a reasonable opportunity of showing cause against the order proposed to be made, and until this objection, if any, and any evidence he may produce in support of the same have been considered by the RCA.
यहाँ पे बता रहे हैं सेक्शन 30 में क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा आरसीए। देखिए आरसीए ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगा जो प्रेजुडिशली अफेक्ट करेगा सामने वाली पार्टी के लिए। उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट दिया जाएगा। अगर उसके पास कोई भी एविडेंस है जो उसके सपोर्ट में है या फिर कोई भी ऑब्जेक्शन है विच दैट पार्टी वांट्स टू रेज, सो दैट विल बी कंसिडर्ड बाय द आरसीए। Clause 2. In any proceedings before it, RCA shall consider the question of cost and award such cost to or against any party as the RCA consider reasonable. Clause 2. RCA can award the clause. Moving on to section 31, important है काफ़ी, अपील टू डीजे और एडीजे। देखिए इस वाले सेक्शन में ये है कि अगर आरसीए के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना है तो वो अपील कहाँ लाई करेगी, डीजे के पास या फिर एडीजे के पास। आरसीए ने ऑर्डर दिया, 30 दिन का टाइम है, आप जो है इस टाइम लिमिट के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं, ठीक है, एडीजे या फिर डीजे के पास। अब इस बीच में मान लीजिए जो भी समय लगा है जो आरसीए के ऑर्डर की कॉपी उसे ऑब्टेन करने में, उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड इन एनी केस अगर सफिशिएंट रीजंस हैं जहाँ पे 30 दिन का समय एक्सपायर हो गया, पार्टी अपील नहीं कर पाई, अगर एडीजे और डीजे को लगता है तो वो अपील अलाउ कर सकता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग द सफिशिएंट रीजंस फॉर इट। सेक्शन 32 इट टॉक्स अबाउट द सेकेंड अपील। फर्स्ट अपील में जो ऑर्डर पास हुआ है उसके अगेंस्ट सेकेंड अपील फाइल हो सकती है, बट जो ग्राउंड्स हैं इस वाले प्रोविजंस पे जो मेंशन है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे। ग्राउंड्स क्या है आपके, अगर कोई भी ऐसा डिसीजन है विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द लॉ या फिर यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, या फिर जो डिसीजन आया दैट हैज़ फेल्ड टू डिटरमाइन द मटीरियल इशू ऑफ द लॉ, या फिर कोई ऐसे सब्सटैंशियल एरर है या फिर डिफेक्ट हुआ है इन द प्रोसीजर विच इज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है आपका जो डिसीजन है वो एक एरर डिसीजन है या फिर डिफेक्ट आया है डिसीजन में, या फिर इट हैज़ अफेक्टेड द मेरिट ऑफ द केस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड अपील सेक्शन 32। मूविंग ऑन टू सेक्शन 33, अमेंडमेंट ऑफ द ऑर्डर्स। क्लरिकल या फिर अरिथमेटिकल मिस्टेक हुई है ऑर्डर में जो आरसीए ने पास करा या फिर जज ने पास किया है, तो किसी भी टाइम जो है ये करेक्ट किया जा सकता है बाय आरसीए और द जज जब एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ठीक है, ऑन द बिहाफ फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टीज़। जब पार्टीज एप्लीकेशन फाइल करेगी कि डिसीजन में जो है कुछ क्लरिकल या फिर अरिथमेटिकल मिस्टेक हुई है जो डिसीजन आपका आरसीए या फिर जज ने पास किया है, तो ये सीपीसी की तरह ही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 34 इट टॉक्स अबाउट द आरसी अथॉरिटी टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट फॉर रिकवरी ऑफ द फाइन। यहाँ पे रिकवरी ऑफ फाइन की बात कर रहे हैं। एनी फाइन विच इज़ बीन इम्पोज बाय द आरसीए अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड बाय द पर्सन फाइंड विद सच टाइम लिमिट एज मे बी अलाउड बाय द आरसीए। आरसीए में फॉर द गुड एंड द सफिशिएंट रीजन एक्सटेंड द टाइम एंड इन डिफॉल्ट ऑफ सच पेमेंट द अमाउंट शैल बी रिकवरेबल एज अ फाइन अंडर द प्रोविजन ऑफ CRPC and the RCA shall be deemed to be a magistrate under this said court for the purpose of such recovery। मान लीजिए आरसीए ने किसी पार्टी के अगेंस्ट जो है फ़ाइन इम्पोज करा है, एक टाइम लिमिट है उसे फ़ाइन पे करने की, बट ये टाइम लिमिट एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर आरसीए को लगता है देयर हैव बीन लाइक सफिशिएंट गुड रीजंस, ठीक है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मान लीजिए डिफ़ॉल्ट हुआ इन द पेमेंट ऑफ द फाइन, तो उस टाइम पे क्या होगा कि अमाउंट जो होगा वो रिकवर करा जाएगा एज अ फाइन अंडर द प्रोसीजर ऑफ सीआरपीसी। जैसे सीआरपीसी में फ़ाइन रिकवर करते हैं सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। एन आरसीए यहाँ पे क्या होगा, शैल डीम टू बी द मजिस्ट्रेट अंडर द सेट कोड। अब देखते हैं सेक्शन 35, आरसीए टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द सिविल कोड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर ऑर्डर्स। Section 35 RCA to exercise the powers of the civil code for the execution of other orders। सेक्शन 34 में हमने ये देखा कि आरसी के पास कौन सी पावर है, जो मजिस्ट्रेट के पास पावर है अंडर सीआरपीसी। बट अदरवाइज़ अगर कोई ऑर्डर है विच इज़ पास्ड इन अपील, ठीक है, या फिर कोई रिवीजन का जो ऑर्डर पास करा गया है चैप्टर 3A में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आरसी के पास सेम पावर होगी जो सिविल कोर्ट के पास होती है। सो सिविल कोर्ट के पास क्या पावर है, जैसे डिक्री जिस तरीके से वहाँ एग्जीक्यूट होती है इसी तरीके से आरसीए का ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। ऑलराइट, अब हम सेक्शन 36 फाइनलिटी ऑफ द ऑर्डर। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एवरी ऑर्डर मेड बाय द आरसीए शैल सब्जेक्ट टू द डिसीजन इन अपील बी फाइनल and shall not be called in question in any original suit, application or execution proceeding, save as otherwise expressly provided। मतलब इस एक्ट में जहाँ पे एक्सप्रेसली दिया गया है कि आरसीए के ऑर्डर के अगेंस्ट आपको पता है अपील हो सकती है, ठीक है, सो अपील हो सकती है, अदरवाइज़ क्या है कि आरसीए के जो डिसीजंस होंगे, ठीक है, इट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी ओरिजिनल सूट, एप्लीकेशन या फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। तो वहाँ पे आरसीए के जो ऑर्डर्स हैं
वो आपके फाइनल माने जाएंगे। वैसे तो वो दे आर सब्जेक्टेड टू द डिसीजंस इन अपील, ठीक है, वो तो है ही। उसके अलावा वो बात कर रहे हैं कि उसके जो ऑर्डर हैं कभी उन्हें ओरिजिनल सूट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, ना ही एप्लीकेशन के थ्रू या फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के थ्रू। तो उस केस में आरसी के ऑर्डर्स क्या होंगे, फाइनल होंगे। सो एवरीवन, वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। सो प्लीज़ फॉलो द ड्रिल, वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।